Gita, all the verses, all the shlokas are directly concerned with human life. How to guide human life so that it can achieve the goal, the target of being human being. See, when I am talking about the goal and the target, it is not merely those goals, those objectives, those targets which everyone makes every day. It may be, may not be true. How it can be the real goal of the human life, human being. Srimad Bhagavad Gita has focused on it. All the verses shed, are a speech of Lord Krishna, which was shared to Arjuna in the mid of the battlefield. There is no any other religion or any instances in which such words, such sentences, such guidelines have been given in such adverse condition. You can imagine the scene of a war. In the scene of a war, where two parties are in front of each other, they have the mindset to destroy each other, they have the mindset to victory over one another, they have the mindset to defeat those who are in front of them. But in such adverse situation, Lord Krishna gave the formula, gave the way, gave the guidelines for mankind. So I'll share few very useful verses of Srimad Bhagavad Gita. Though all the verses of Srimad Bhagavad Gita have great importance in human life, but it is not possible to discuss all those at once. So we'll start with few. Gita, it is a granth. It is a holy scripture. Not for Hindus and Sanatanis, but I think it's for the whole universe. All the things have been discussed and explained so clearly that it can provide the solution to any problem of this universe. Here, to you people, I'll share a verse that is very famous and well known. You all might have heard it so many times. कर्मण्यवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगमोऽस्य त्वकर्मणि. This verse is related with karma. Lord Krishna says, being a human, it is your right to perform duties, your work. To take action is your right. But do not claim for its fruit. दिस इज द थिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड. यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है,
As you are born, you will die. Between these two events, you have to perform action. You cannot be without action. So one has to keep on doing his or her things. Now, in the second line of the same verse, as it is said, Ma karma phal hetur bhurma te sango asto karmani. कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। और अपने आप को इस वजह से, यदि जब हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, तो वहां एक चीज ये हो सकता है कि हम कर्म करें क्यों, हम क्यों कर्म करें, क्योंकि हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है, तो कर्म ना करें। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम अकर्मण्य नहीं बनो, क्योंकि जन्म और मरण के बीच का जो अंतराल है, इसमें तुम्हें हमेशा अपनी आसक्ति जो है कर्म से होनी चाहिए कि मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है। आई हैव टू डू माई थिंग्स, आई हैव टू डू माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म माई फंक्शन, बिकॉज naturally also nature has its function full form। प्रकृति में कोई भी चीज, हम कहते हैं ना, अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन का मतलब ही है कुछ न कुछ होते रहना, क्योंकि अगर होगा नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जो कर्म है, ये कर्म है कि आप, बहुत से लोग समझते हैं कि कर्म करने का मतलब चलो हम हाथ से जो कर्म करते हैं वही कर्म है। किसी को हाथ से उठा के कुछ दिया, हाथ से कुछ लिखे, हाथ से कुछ काम किए, वही कर्म है। नहीं, यहाँ जो कर्म है, ऑफ कोर्स आपके जो शरीर है, शरीर का जो भौतिक रूप है, इसके द्वारा की जाने वाली जो कर्म है वो तो है ही, साथ में मानसिक रूप से की जाने वाली कर्म, अपनी बोली, वक्तव्य और वाणी से भी कर्म होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने किसी को मारा, उसे चोट लगी, एक कर्म हुआ मारने का। मन से आपने एक मनोभाव बनाया, मारना है उसे, यह भी एक कर्म है। तो वो जो कर्म यहाँ हो रहा है, वह ये जो शरीर है भौतिक, उससे आपके मन और यहाँ तक कि आपकी बोली से, अब कहोगे मन से, यहाँ एक संशय उठती है बच्चों के मन में कि सर मन से कैसे कर्म, मन से भी तो कर्म होते हैं। कई बार आप देखिए, आप कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस आपके मन में कुछ आती है, उसके मनोभाव चेहरे पे फैल जाता है और सामने वाला उसको परख लेता है। खुशी होने की बात है तो खुश हो जाता है, दुखी होने की बात है दुख हो जाता है। अब यहाँ एक स्टूडेंट्स के लिए ये कितना मायने रखता है, एक स्टूडेंट के लिए भी ये उतना ही मायने रखता है। तुम्हें जो कर्म मिला है, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो। तुम ये सोच के मत पढ़ो कि मैं ये पढ़ूंगा तो टॉप करूंगा, इससे मेरे माता पिता का नाम होगा, कल हो के मुझे एक अच्छा काम मिलेगा, या इस सोच के साथ नहीं पढ़ना है कि माता पिता जो मेरे हैं उनकी आशाएं हैं मुझसे, तो पूरा तो करना है। तुम्हारा काम है, तुम सिर्फ प्रयत्न करो, तुम अपने कर्म करो, इसमें फल क्या होगा उसके लिए तुम्हें नहीं, तुम अपने कर्म को डिसाइड करो। मतलब हमेशा अच्छे कर्म करो। कर्म सत्कर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो उसे नियंत्रित करना है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, क्या वो सही दिशा में है, उसमें जो मैं
अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ, वो सही लग पा रहा है। तुम बस ये करो, ये तुम्हारे बस में है। बाकी उसका परिणाम यानी उसका फल जो होगा, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, कोई दावा नहीं करना है। ये भगवत वचन है, भगवान के द्वारा कही गई बात है, लेकिन समझने में यहाँ बड़ी फेर हो जाती है, क्योंकि निश्चित बात है। तो यहाँ इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, जिस तरह से ऊर्जा जो है, कहीं भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। Energy get transferred from one form to another form, and we need energy to do any work. So if the energy has been spent in performing work, it means the energy has been transformed into another form, and surely it will bring some result. Surely it will bring some result. तो इसलिए तुम ये करो कि तुम कर क्या रहे हो, अपने काम पर बस फोकस करना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो सही दिशा में है। क्या मेरा जो कर्म है वह मेरे मन से जुड़ा हुआ है? क्योंकि अगर आपके कर्म मन से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर परिणाम उसके भी आएंगे, फल उसका भी मिलेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका कि फल प्राप्त नहीं होता है। बस ये होता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ना हो, कुछ और हो जाए, लेकिन फल तो आता है। बिना फल का कोई भी कर्म नहीं होता। इसलिए एक विद्यार्थी के लिए यह है कि वो क्या सही दिशा में अध्ययन कर रहा है, क्या अपने कर्म को सर्वोपरि रखे हुआ है, क्या अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहा है, क्या अपने कर्म को बिल्कुल कर्म योगी की तरह कर रहा है। अब कर्म योगी क्या होता है? जो अपने काम को बाहरी सारी चीज़ों से अलग रख के अपने आप को काम पे लगाता है, वो कर्मयोगी है। क्योंकि योग अंदर से जोड़ देता है आपको, और बाहर से अन्य चीज़ों से जो है वह आपका संबंध विच्छेद कर देता है। एक विद्यार्थी के लिए भी यही है। When you sit for the study, at that time you must be connected with your mind and soul only. In that condition, if you can maintain it, then surely all the external forces which can cause destruction and disturbances to you, it will vanish itself. So the thing is that you keep yourself connected with your soul and mind. When you are connected with your soul and mind, whatever you will utter, whatever you will speak, surely that will be in accordance with your soul and mind. And when your things are in the accordance of your soul and mind, surely it will produce a good result. So your good results are already guaranteed. It has been said by Lord Krishna, but he has not said directly. He has simply said, no, you keep on walking. You keep on walking. You do not have to think for the result. Whatever is the result of your work, that I'll decide. Being the God, the Lord Almighty, I'll decide. You do not have to think for that. You have to only keep on performing your work. अपने काम को करो। जब तुम करोगे, फल तो निश्चित है, इनएविटेबल है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो जरूरी यह है कि तुम्हें सही कार्य पे लगे रहना है। जब तक आप अपने कार्य में सही दिशा में मन से, मस्तिष्क से जुड़े हुए हो और उसी के अनुरूप आपके कार्य भी हो रहे हैं, तो निश्चित बात है वह कार्य एक कर्म योगी का होता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मस्तिष्क दोनों को एक साथ रख के जुड़ता है, तो उस स्थिति में वो योगी बन जाता है। क्योंकि उस समय उसकी संबंध बाहरी चीजों से विच्छेद हो जाता है। योर पीयर प्रेशर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, योर पेरेंटल love, affection, all the things, that is not going to affect you, and you will be only focused and concentrated towards your work, towards your study. So can you do it? कि जब आप बैठे, अध्ययन करने बैठे, उस समय आप अपने आप को सिर्फ खुद से जोड़ के रख पाए, बाहरी चीजों से ना जोड़े। वहां आपकी संबंध जो है उस समय माता पिता सबसे टूट जाता है उस पल के लिए, अपने दोस्तों से,
मित्रों से आप अलग हो जाते हैं। आप और आपका विचार, आप और आपका मन, सिर्फ वही होता है। और इस तरह से यदि हम कार्य करते हैं तो उस कार्य का फल आप जो सोचे होंगे उससे कई गुना बहुत ज़्यादा आएगा और बहुत बेहतर आएगा, इतना बेहतर आएगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए जब आप कार्य करते हैं तो अपने कार्य को सही दिशा में करें। आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपकी कार्य सही दिशा में जा रही है, आप उस पर सही ऊर्जा दे पा रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर पा रहे हैं। यह कार्य जो होगा वह क्या सिर्फ आपके लिए होगा? अगर आप अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। इफ यू आर वर्किंग फॉर योर ऑन, नो, योर वर्क शुड बी फॉर अदर्स टू। That is why simply it is said that have very huge goal. बड़े सपने देखो, बड़ा चीज देखो। क्या बड़ा चीज? वहां क्या होता है? बड़ा चीज का मतलब यही होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्याण नहीं देखो, अपनी फायदा नहीं देखो, तुम औरों की फायदा भी उसमें समाहित करके रखो। क्योंकि जब तुम औरों की फायदा के लिए सोचोगे तो निश्चित बात है तुम्हारी अपनी फायदा भी उसमें समाहित होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब लोगों के कल्याण की बात तुम करते हो तो उसमें तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ ना हो। उसी में तुम्हारा भी कल्याण छुपा होगा कहीं न कहीं। और निश्चित बात है अगर ऐसा है तो ऐसे कार्य के लिए जितनी ऊर्जा देनी चाहिए और उसका फल भी जरूर आपको मिलेगा। आपको उसके लिए पहले से ये नहीं सोच के करना है कि ये फल मिलेगा, आप बस अपना काम कीजिए। इसीलिए ये जो गीता का वर्ष है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है। तुम एक धनुर्धर हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे वश में है कि तुम धनुष उठाओ, तीर चलाओ, निशाना लगाओ। लेकिन यह भेद कर आ ही जाए लक्ष्य को, ये छोड़ दो तुम, ये मुझ पे छोड़ दो। इसलिए बच्चों, मेहनत सुबह करो, शाम करो, जो भी तुम्हारी समय सारिणी है, रूटीन है, उसमें बैठ के करो। इस बात को आगे नहीं रखना है कि नहीं इतना प्रयास से मेरा 92% आ जाएगा, मेरा 98% आ जाएगा, आना ही चाहिए। नो, लिव इट, यू ओनली डू योर वर्क। और वो जो मैंने कहा ना, बड़ा सा, वो बड़ा सा रखो यहाँ। उस उद्देश्य के साथ करोगे तो तुम्हारा प्रयत्न में तुम्हारा जो ऊर्जा लगेगा वो भी उसी के अनुरूप होगा। अब हम शो, आर यू गेटिंग मी? वुड यू लाइक टू शेयर योर views? Once write in the comment box so that I can start the next verse. आप अपने व्यूज कमेंट्स में लिखें ताकि मैं दूसरा वर्ष आज आपसे शेयर करूंगा। आप में से कितने हैं जो इससे सहमत हैं? कि हमें कर्म इस तरह से करना चाहिए। आज मैं सिर्फ कर्म पे ही इंट्रैक्शन करूंगा क्योंकि कर्म है तो जीवन है। हमारा दूसरा गीता का वर्ष है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। एक्चुअली यहाँ जो कहता है योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी अपने कर्म को भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, कर्म जो तुम करो तो किसी लालच में आके नहीं करना, किसी बाहरी चीजों से प्रभावित होकर मत करना।
और तुम जब कर्म कर रहे हो उस समय किसी भी तरह से बाहरी चीज़ों का प्रभाव भी तुम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तुम कर्म योगी नहीं कहलाओगे। वह क्योंकि वह एक योगी का कर्म नहीं है। तो कर्म करते समय अपने आप को बिल्कुल एक योगी बनाओ, जिसमें कि तुम बाहरी तत्वों से विमुक्त रहो, बाहरी तत्वों से बिल्कुल मुक्त रहो। यानी कि बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन यू, the love I said, na, love and affection of your parents, your friends, your family members, and so many thoughts which are being put into your mind, being inculcated into your brain every day from every side. You should get rid of all those unwanted kind of things for that time. Why I said unwanted kind of thing? Many of that views may be counted very well, but I said unwanted. Why? Because at the time of your study, those things are unwanted. So get rid of that. Connect yourself, connect your mind and soul to your work only. When you connect your mind and soul while performing your work, it will be a focused work, and surely you will have the ability to hit the target. Rather than beating around the bush, you will be able to hit the target. और जिस समय आप इस तरह से एक योगी की तरह जब कर्म करेंगे, तो आप निश्चित बात है अपने लक्ष्य को हिट करने में समर्थ होंगे, संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद है सिद्ध्यो सिद्ध्यो सिद्ध सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग। और यहाँ दूसरा लाइन जो है ये कहता है कि अर्जुन, सफलता और विफलता सिद्ध्यो सिद्ध्य सिद्ध सिद्ध्यो, यानी कि वहाँ आपकी सफलता और असफलता जो है उसको लेके कह रहे हैं भगवान की तुम जब कर्म करते हो तो अपनी सफलता और असफलता इस दोनों को समरूपता से देखो। ये दोनों है लेकिन दोनों को समरूपता से देखो, एक जैसा देखो। अगर आप सफल हो ठीक है, अगर आप विफल हो गए तो भी ठीक है। मीन्स यू हैव टू टेक योर सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। Don't get aggravated when you got fail. Don't show hip and palms with happiness when you succeeded. तो अपनी सफलता और असफलता दोनों को बराबर रूप में लेके चलो, दोनों का महत्व एक ही जैसा समझो। हार गए तो भी ठीक, जीत गए तो भी ठीक। ना तो तुम्हें जीत से बहुत प्रसन्न होना है और ना ही तुम्हें अपनी हार से घबराना है। तो इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति अपना कर्म करता है और अपने कर्म में सफलता और असफलता दोनों के लिए बराबर रूप से उसे लेने के लिए तैयार है, वो एक इक्विलिब्रियम जो सम्यता का स्थिति है दोनों तरफ, तो ऐसा कार्य यदि आप कर पा रहे हैं तो आपका जो कार्य है वह लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ज़्यादा उन्मुख होगा और लक्ष्य प्राप्ति वहाँ आसान हो सकती है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एक ही प्रयास में आपकी लक्ष्य आपको मिल जाए, लेकिन अगर जब एक प्रयास में नहीं मिले तो वहाँ पीछे भी नहीं हटना है। हाँ, बड़ी आसानी से इस बात को स्वीकार करना है कि कुछ न कुछ हो सकता है कम रह गया होगा, तो वहाँ दुखी भी नहीं होना है। अब अपने जय पराजय, सफलता असफलता, इन दोनों चीज़ों को एक तरह से व्यवहार करें, ऐसी क्षमता अपने में विकसित करें। अगर आप आज तक असफल हैं तो उससे घबराना नहीं है। अगर कोई सफल है आज तक तो हिप एंड पॉम्प्स भी नहीं करना है उसको कैसे बरकरार रहेगा और अच्छा आप कैसे कर पाओगे, ऐसा सोचिए। So guys, now it is your time now. You can ask your thing. I have shared
only 2 hours today. So, how did you feel now? Do you feel it's going to help you? See, of course, if you take it positively, there is no any other motivational source in this universe which can beat this one. Srimad Bhagavad Gita. It can transform the life. It has transformed the life since time immemorial.